चलिए भाई, कहाँ तक बात हो गई थी? रिप्रोडक्शन की बात करनी है। ठीक है। ओके।
चलिए देखिए भाई, ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, इधर ध्यान देंगे सभी। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात कर रहे हैं, कॉकरोच का ब्रीडिंग सीजन होता है मार्च से सितंबर। मार्च टू सितंबर इसका ब्रीडिंग सीजन होता है। 6 महीने ब्रीडिंग करेंगे, 6 महीने रेस्ट करते हैं। ये जो इधर बताए गए हैं ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं जो रिप्रोडक्शन पे हेल्प करते हैं। ये वेंट्रल फेलोमियर्स हैं, ये राइट फेलोमियर, ये लेफ्ट फेलोमियर। वेंट्रल फेलोमियर सबसे छोटा फेलोमियर्स होता है, इसमें कोई स्पाइन या हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ये सबसे छोटा फेलोमियर होता है। राइट फेलोमियर, ये इसमें एक ही लोब होता है, सैरेट लोब, और 2 स्पाइन लगे होते हैं। ये एक स्पाइन है और दूसरा स्पाइन इसके पीछे की तरफ होता है। राइट फेलोमियर में 2 स्पाइन। सबसे बड़ा फेलोमियर होता है लेफ्ट फेलोमियर। इसमें 4 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एक होता है टिटिलेटर, एक होता है स्यूडोपेनिस, ये एस्पिरेट लोब है और ये एक्यूटोलोबस है। टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, एस्पिरेट लोब और एक्यूटोलोबस। ये जो टिटिलेटर और एक्यूटोलोबस है, इनके ऊपर स्पाइन लगा हुआ है। देखिए आप, टिटिलेटर और एक्यूटोलोबस पे स्पाइन लगा हुआ है। ये स्पाइन क्या काम करेगा? एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन फीमेल गोनेटोफोर को वाइड करने का काम करेगा। तो एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन फीमेल गोनेटोफोर को वाइड करने का काम करते हैं ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे छोटा फेलोमियर कौन सा है? वेंट्रल फेलोमियर। सबसे बड़ा फेलोमियर लेफ्ट फेलोमियर सबसे बड़ा फेलोमियर होता है। इसमें टिटिलेटर है, स्यूडोपेनिस, एस्पेरेट लोब, एक्यूटोलोबस, ये यहाँ पे लगे होते हैं, इस साइड लगे होंगे। ठीक, अब ध्यान देना भाई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, a pair of testes are present in the male, and pair of testes are present in the 4th, 5th and 6th abdominal segment. A pair of testes are present in the 4th, 5th and 6th abdominal segment. Each testis divided into 2 to 3 lobes. Each testis divided into 2 to 3 lobes, and each lobe have number of lobules. Sperm are produced inside these lobules. Sperm are produced inside these lobules. Next, a vas difference arises from the each testis, and both vas difference are fused together and open in a common chamber, and that common chamber is known as the seminal vesicle. Vas difference arises from the each testis, and both vas difference are fused together and open in a common chamber, and that common chamber is known as the seminal vesicle. Sperm are stored there. Next, a flower-like gland that is called the mushroom gland are present on the seminal vesicle. The mushroom gland have the 2 tubes. Long tube, blue one. Long tube is known as the uticuli major, and the small tube, black one, is known as the uticuli brevis. Long tube, blue one, is known as the uticuli major, and the small tube, black one, is known as the uticuli brevis. And both are commonly known as the mushroom gland. We have already discussed that uricose gland are present only in the male. Uricose gland is a excretory unit, are present only in the male. The uricose gland, green point dot like structure are there, green dot like structure, that is called uricose gland. The tip of the uticuli major have the uricose gland. It present only in the male. We have already discussed that. Okay. Later we'll discuss what is the function of the uticuli major and the uticuli brevis. But mind it only one thing, a flower-like gland are present on the seminal vesicle, that is called the mushroom gland. They have the 2 tubes. Okay. One another gland is also present on the mushroom gland, and that another gland is known as the phallic gland. Phallic gland is also known as the conglobate gland. Phallic gland is also known as the conglobate gland. Later we'll discuss what is the significance of the phallic gland and what is the significance of their secretions. But mind it only one thing, we can say a duct are evolved from the phallic gland, and that duct is known as the phallic duct, and that phallic duct are open in a genital pouch. Phallic duct are open in a genital pouch. Another duct are evolved from the seminal vesicle, and that another duct is known as the ejaculatory duct. This is called the ejaculatory duct.
ejaculatory duct. This ejaculatory duct are also open in the genital pouch. And the phallic duct evolved from the phallic gland. And that phallic duct is also open in a genital pouch. Phallic duct. Isn't it? Okay. This is the male reproductive system. Okay. If we discuss about the female reproductive system, here we can say a pair of ovary, a pair of ovary are present in the female, and pair of ovary are present between the 2 to 6 abdominal segment. Testes are present in the 4th, 5th, and 6th abdominal segment, but the ovary, a pair of ovary are present between the 2 to 6 abdominal segment. You know, each ovary have 8 ovarioles. Each ovary have 8 ovarioles, and each ovariole produce 1 egg. Each ovariole produce 1 egg. So 8 egg from the right ovary and 8 egg from the left ovary. Total 16 egg are from there. Okay. Next, oviduct are evolved from the each ovary, and both oviduct are fused together and form the common oviduct. And this common oviduct is known as the vagina. And this vagina are open in the genital pouch. Genital pouch is heart-shaped structure, genital pouch. The upper part of the genital pouch is known as the genital chamber, and the lower part is known as the urethral chamber. Here we can say vagina open in the genital pouch. A 2 unequal size of the spermatheca is also present there. 2 unequal size of the spermatheca is also present there, and the spermatheca is also open in the genital pouch. Later we'll discuss what is the function of the spermatheca. Store the sperm. Spermatheca is store the sperm, and this spermatheca also open in the genital pouch. A collateral gland, red one. Collateral gland is also open in the genital pouch. This collateral gland help in the formation of ootheca. Later we'll discuss what is the ootheca, but mind only one thing: collateral gland also help in the formation of ootheca. So here we can say three structures are open in the genital pouch. 3 structures are open there. Vagina are open there. Spermatheca are open there, and the collateral gland are open there. All these structures are open in the genital pouch. The upper part of the genital pouch, upper half is known as the genital chamber, and the lower half is known as the urethral chamber. Isn't it? Okay. So here we can say, are you understand what I am trying to say? No, either I will change my language. No, if you are not comfortable, then I will change my language. Comfortable? No. Okay. चलो हाँ बोलो ठीक है ओके अच्छा देख लो ठीक है इधर देखो भाई देखो सुनो ठीक भाई ऐसा है ना 3 यहाँ पे फेलोमियर है सुनो बात ये फेलोमियर्स जो होते हैं सुनो भाई ये फेलोमियर्स जो हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है और ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीनों सबसे छोटा फेलोमियर है लेफ्ट फेलोमियर सॉरी वेंट्रल फेलोमियर सबसे छोटा फेलोमियर है अच्छा राइट फेलोमियर इसके अंदर सेरेट लोब होती है एक ही लोब है और सबसे बड़ा फेलोमियर कौन सा है इसके अंदर कितनी लोब 4 टिटिलेटर स्यूडोपेनिस एस्पेटलोब और एक्टिटोलोबस जो टिटिलेटर है और एक्टिटोलोबस है इनके अराउंड क्या लगा हुआ है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर टिटिलेटर और एक्टिटोलोबस पे लगा हुआ है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन ये फीमेल गोनोडोफोर को वाइड करने का काम करेगा ओके अच्छा इधर आओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम a pair of testes are present there or pair of testes present at the 4th 5th and 6th abdominal segment each testis divided into 2 to 3 lobes and each lobe have number of lobule sperm कहां बना lobule के अंदर अच्छा testis से क्या इवॉल्व हो रही है भाई वॉस डिफरेंस दोनों वॉस डिफरेंस कहां ओपन हो रही है सेमिनल वेसिकल में जिसमें स्पर्म स्टोर होगा सेमिनल वेसिकल के ऊपर एक ग्लैंड है मशरूम ग्लैंड के अंदर 2 ट्यूब से लॉन्ग ट्यूब यूट्रिकुलाई मेजर और स्मॉल ट्यूब को कहते हैं यूट्रिकुलाई ब्रेवियर्स अच्छा यूट्रिकुलाई मेजर का जो टिप है ना वो वहां पे यूरिकोस ग्लैंड है ये टिप क्या है ग्रीन ये यूरिकोस ग्लैंड जो एसकेटी यूनिट्स था मेल में था अभी बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है अच्छा इसके ऊपर एक ग्लैंड और लगा हुआ है फेलिक ग्लैंड को अपन दूसरा नाम क्या देंगे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड अच्छा फेलिक ग्लैंड से एक डक्ट आ रहा है देखो फेलिक ग्लैंड से डक्ट आ रहा है फेलिक ये कहां ओपन हो रहा है जेनिटल पाउच में
अच्छा, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आ रही है, वो इजैक्युलेटरी डक्ट, वो भी ओपन हो रही है जेनिटल पाउच में। क्लियर है? इधर आओ, ओवरी, वन पेयर ओवरी है, कहां प्रेजेंट है भाई? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में ओवरी प्रेजेंट है। ओके, एंड ईच ओवरी हैव 8 ओवेरियोल, ईच ओवरी हैव 8 ओवेरियोल्स, और ईच ओवेरियोल प्रोड्यूस, तो 8 एग तो यहां बनेंगे और 8 एग यहां पे बनेंगे, टोटल कितने एग बने? 16। अच्छा, ओवरी से क्या इवॉल्व हो रहा है भाई? both oviduct are fused together and form the common oviduct, that is called the vagina, and this vagina open in the genital pouch. Spermatheca, pair of spermatheca are also open in a genital pouch. Collateral gland is also open in a genital pouch. This is the genital pouch, and the upper half is known as the genital chamber and the lower half is known as the otical chamber. A gonadophysis is also present there. अब ये कितने एक बनते हैं? 16 एक को 2 रो में अरेंज करने का काम करता है गोनोपोफाइसिस। 16 एक को 2 रो में अरेंज करने का काम करेगा कौन? गोनोपोफाइसिस। ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, यहां तक होगी बात। ब्रीडिंग सीजन कब है? मार्च से। अब जैसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया, अच्छा, स्टिंग ग्लैंड होती है, इनमें सैंड ग्लैंड होती है, मेल फीमेल के पास सैंड ग्लैंड है, तो फेरोमोन्स होते हैं जो अपोजिट सेक्स को और एनिमी को। अब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया, अब मेल बैठा हुआ, अब फीमेल उधर से पास आउट होगी, मेल की तरफ स्प्रे कर, और अभी रुक जा तू 1 मिनट, है ना? हाँ, अभी इसको बुलाएंगे, अभी रुक जा। तो अब वो मेल की तरफ स्प्रे कर दिया, अब फीमेल ने भी स्प्रे कर दिया, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दोनों पोस्टीरियर साइड से आकर के फ्यूज होंगे, दोनों पोस्टीरियर साइड से आके फ्यूज होंगे, एक इधर से एक इधर, पोस्टीरियर साइड से फ्यूज। इनका कॉपुलेशन टाइम होता है 1 आवर, है ना? इस प्रकार से फ्यूज हो गए और 1 आवर इनका कॉपुलेशन टाइम होगा। अब होगा क्या, सुनो, अब इन्होंने फेलोमेर्स ने क्या करा? फीमेल गोनाडोफोर को वाइट किया, और अब ये जो लोब है ये क्या हो जाएंगी? ये उसमें एंटर कर जाएंगी। ठीक, अब सुनो क्या होता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्पर्म कहाँ है? यहां से सेमिनल वैसे स्पर्म का एक बॉल बन जाएगा, इसको बोलेंगे स्पर्म बॉल। स्पर्म का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको क्या कहेंगे अपन? स्पर्म बॉल। ये देखिएगा, ये स्पर्म बॉल, और स्पर्म के चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट किया जाएगा, तो ये लेयर कौन बनाएगा? यूट्रिकुलाई मेजर। यूट्रिकुलाई मेजर स्पर्म के चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट करेगा, अभी इसको बोलेंगे स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर, तो यूट्रिकुलाई मेजर ने इसकी तरफ लेयर बना दिया, और यूट्रिकुलाई ब्रेवियर्स इसमें नरिशमेंट रखेगा, ये न्यूट्रिशन रख दिया इसने। ठीक है, तो स्पर्म के चारों तरफ फर्स्ट लेयर किसने बनाई? यूट्रिकुलाई मेजर ने, और नरिशमेंट किसने रखा? ब्रेवियर्स। अब ये पूरा स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया है इजैकुलेटरी डक्ट में, ये इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया, ये इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया। फर्स्ट लेयर तो बनाई थी यूट्रिकुलाई मेजर ने, सेकंड लेयर इसके चारों तरफ कौन बनाएगा? इजैकुलेटरी। अब इजैकुलेटरी डक्ट ने स्पर्म के चारों तरफ सेकंड लेयर बना दी। अब ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ आएगा? ये आएगा जेनिटल पाउच में। ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर तो बनाई थी यूट्रिकुलाई मेजर ने, ये सेकंड लेयर ये किसने बनाई? ये सेकंड लेयर बनाई है इजैकुलेटरी डक्ट ने। अब फेलिक ग्लैंड के सिक्रीशन आएंगे किसके थ्रू? फेलिक डक्ट के थ्रू, और इसके चारों तरफ तीसरी लेयर बना देंगे। स्पर्म के चारों तरफ 3 लेयर हो गई, हाई सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा है इसको, स्पर्म को हाई सिक्योरिटी के अंदर ले जाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो अच्छा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। अब क्या होगा? मेल इस स्पर्मेटोफोर को, फर्स्ट लेयर किसने बनाई? मेजर, सेकंड लेयर इजैकुलेटरी डक्ट, थर्ड लेयर। अब मेल क्या करेगा कि मेल इस स्पर्मेटोफोर को फीमेल बॉडी में रिलीज कर देगा। ये मेल ने यहाँ पे रिलीज कर दिया, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। अब मेल ने यहाँ पे रिलीज कर दिया, अब मेल ने रिलीज कर दिया, अब दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब ये रिलीज कर दिया और अब दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब हाँ, तो अब क्या होगा कि अब सुनो, इसमें जो स्पर्म है वो सारे कहाँ आ जाएंगे? स्पर्मेथिका में। ये जो स्पर्मेटोफोर है
ये 20 आवर्स अंदर रहेगा। कितने आवर्स अंदर रहेगा? 20 आवर्स अंदर रहेगा। इस पे जो भी स्पर्म है वो सारे कहाँ आ जाएंगे? स्पर्मेथिका में आ जाएंगे। अब फीमेल इस खाली केस को बाहर रिलीज कर देगी। इसमें जो स्पर्म थे वो तो आ गए स्पर्मेथिका में, खाली केस को फीमेल ने रिलीज कर दिया। एट द सेम टाइम अब क्या होगा? 16 एग थे, 8 एग फ्रॉम द राइट ओवरी, 8 एग फ्रॉम द, और ये 16 एग अरेंज इन अ 2 रो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 16 एग 2 रो में अरेंज हो गए। किसने अरेंज किया? गोनोपोफाइसिन। गोनोपोफाइसिन ने 16 एग को 2 रो में अरेंज कर दिया। एट द सेम टाइम अब स्पर्म का रेन हो जाएगा। ये स्पर्म का रेन हो रहा है यहाँ से। कहां से रेन हो रहा है स्पर्म का? स्पर्मेथिका से। यहां से रेन हो रहा है स्पर्म। एट द सेम टाइम कोलेटर ग्लैंड अपने सिक्रीशन रिलीज करेगी और इसके चारों तरफ एक कवरिंग बना देगी। अब इसको बोलेंगे उथिका। इसको बोलेंगे उथिका। अब ये उथिका बन गया। ये देखो, अब फीमेल इसको किसी शेडी प्लेस पे रख देगी। फीमेल इसको किसी शेडी प्लेस पे रिलीज कर देगी। डेवलपमेंट में टाइम लगेगा 4 to 8 वीक। 4 to 8 वीक के बाद में इनमें से इनके निम्फ बाहर आएंगे। कितने निम्फ बाहर आएंगे? 16 निम्फ बाहर आएंगे। निम्फ पूरे एडल्ट जैसे दिखते हैं। निम्फ लुक लाइक द एडल्ट। डिफरेंस क्या है पता है? निम्फ में विंग्स नहीं होते, एडल्ट में विंग्स होते हैं। निम्फ में विंग्स नहीं होते, एडल्ट में विंग्स है। और निम्फ का साइज छोटा होता है, एडल्ट का साइज बड़ा होता है। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, निम्फ में विंग्स नहीं है, एडल्ट में विंग्स है। इसकी साइज छोटी, इसकी साइज बड़ी। अच्छा, डेवलपमेंट में कितना टाइम लगा? डेवलपमेंट में टाइम लगा 4 to 8 वीक। अब सुनो, निम्फ क्या करेगा? निम्फ अपने स्किन को रिमूव करेगा और नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। फिर अपनी स्किन रिमूव करेगा, नेक्स्ट स्टेज में आएगा। फिर अपनी स्किन रिमूव करेगा, नेक्स्ट स्टेज। ऐसे 13 टाइम मॉल्टिंग करेगा। जैसे स्नेक अपनी स्किन रिमूव करता ना, वैसे ये एनिमल 13 बार मॉल्टिंग करेगा। 13 टाइम मॉल्टिंग करेगा और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। निम्फ 13 टाइम मॉल्टिंग करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तो मिटा दो भाई। हाँ, तो ये देखिएगा, 13 टाइम मॉल्टिंग करेगा और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखिएगा, सबसे पहले तो ये बताएं डेवलपमेंट में कितना टाइम लगा? डेवलपमेंट टाइम 4 to 8 वीक। ठीक है। अच्छा, निम्फ से एडल्ट में कन्वर्ट होने में कितने टाइम लगेगा? तो सुनो, 13 टाइम मॉल्टिंग करेगा। कितनी बार मॉल्टिंग करेगा? 13 टाइम मॉल्टिंग करेगा। ये निम्फ से एडल्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा इसको? 1 ईयर। कितना टाइम लगेगा? 1 ईयर। अच्छा, इसका लाइफ टाइम कितना होता है? 3 to 3.5 ईयर। 1 साल तो एडल्ट होने में लगा, निम्फ से एडल्ट होने में 1 साल लगा। अब बच्चे कितने साल इसके बाद? 2 साल। 2 साल। तो 2 साल बचे। अब सुनो, 2 साल, 1 साल में कितने महीने ब्रीडिंग करता है? तो 2 साल में 12 महीने, यानी कि ये इसका लाइफ इतना हो गया, तो आधा जीवन तो इसका है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब एक बात और, 13 टाइम मॉल्टिंग कर रहा है, 1 साल लगा निम्फ को एडल्ट में कन्वर्ट होने में। जब ये मॉल्टिंग कर रहा है, एक बार अपना स्किन रिमूव किया, नेक्स्ट स्टेज में गया, फिर अपना स्किन रिमूव किया, नेक्स्ट स्टेज। 2 मॉल्टिंग के बीच का टाइम कहलाता है स्टेडियम। 2 मॉल्टिंग के बीच का टाइम स्टेडियम। जब ये मॉल्टिंग कर रहा है तब उसको बोलते हैं इंस्टार। जब ये मॉल्टिंग कर रहा है तब इसको क्या कहेंगे? इंस्टार। तो इंटरवल बिटवीन टू मॉल्टिंग, इंटरवल बिटवीन द 2 मॉल्टिंग, इसको कहेंगे स्टेडियम। ड्यूरिंग ड्यूरिंग मॉल्टिंग इसको क्या कहेंगे? स्टार। ड्यूरिंग मॉल्टिंग इसको अपन कहेंगे स्टार। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ड्यूरिंग मॉल्टिंग स्टार कहेंगे इसको। एक बात और, एक फीमेल, अच्छा एक ऊथिका में कितने बन रहे हैं निम्फ? 16। एक फीमेल अपने लाइफ में 9 to 10 ऊथिका बनाती। 9 to 10 ऊथिका। अच्छा 10 मान लेते हैं अपन, एक फीमेल 10 ऊथिका बनाएगी, तो एक में 16 है, तो 10 में कितने हुए? यानी एक फीमेल अपने लाइफ में कितने कॉकरोच प्रोड्यूस कर देगी? 160। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए इनका नंबर ज्यादा हो गया है। दूसरी बात,
हमने कहा था कि एक बार मोल्टिंग करेगा फिर नेक्स्ट स्टेज में गया, फिर मोल्टिंग करी नेक्स्ट में, तो निम्फ को एडल्ट में कन्वर्ट होने में 1 साल लग रहा है। इसका जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसको बोलते हैं पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं इसको अपन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है ना, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको। समझ के बात को? जल्दी बताओ ब्रीडिंग सीजन क्या है भाई? मार्च टू सितंबर। ठीक है, डेवलपमेंट में कितना टाइम लगा? 4 to 8 वीक। कितने नीम बाहर आए? 16। कितनी बार मोल्टिंग करेगा एडल्ट में, कन्वर्ट होने में? 1 साल। ठीक है, 2 मोल्टिंग के बीच का टाइम स्टेडियम। ड्यूरिंग मोल्टिंग क्या कहेंगे? स्टार। एक फीमेल अपने लाइफ में कितने उठी का? 10। एक में 16, तो 10 में 5। डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। याद रहेगा? ये सारी बातें अपने को पता। अच्छा, स्पर्म के अराउंड फर्स्ट लेयर किसने बनाई? मेजर, यूट्यूबलाई मेजर ने। नरिशमेंट किसने रखा? ब्रेवियर्स। सेकंड लेयर किसने बनाई? थर्ड लेयर किसने बनाई? फेलिक लैंड ने। अब वो फीमेल ने इसको कहां रिलीज किया? मेल ने इसको रिलीज किया फीमेल बॉडी में। कितने आवर्स रहा? 20 आवर्स। स्पर्म कहां आ गए? अब फीमेल ने उस खाली केस को, हाँ, अब 16 एग आएंगे, 2 रो में अरेंज हो गए। किसने अरेंज किया? गोनेपोफाइसिस ने। अब इसी समय क्या हो गया? स्पर्म का रेन हो गया। कोलेटरल ग्लैंड ने क्या बना दिया? कवरिंग। इसको क्या कहेंगे? उथिका। फीमेल किसी शेडी प्लेस पे रिलीज कर देगी। डेवलपमेंट में 4 to 8 वीक की। अच्छा, लार्वा और एडल्ट और निम्फ में डिफरेंस? विंग्स नहीं होते इनमें, विंग्स होते हैं, इनकी साइज छोटी, इनकी साइज बड़ी। सेकंड लास्ट वाली जो मोल्टिंग होती है ना 12 नंबर की, उसमें विंग पैड बन जाते हैं, और लास्ट वाली में विंग्स बन जाते हैं। 12 नंबर की जो मोल्टिंग होगी ना उसमें विंग पैड बन जाएंगे, और लास्ट वाली मोल्टिंग में विंग्स बन जाते हैं। एक बात बताओ, विंग्स जो होता है ना, फॉर विंग कहां से अटैच है? मीजोथोरेक्स से। मीजोथोरेक्स और हाइंड विंग मेटाथोरेक्स। फ्लाइंग में कौन हेल्प कर रहा है? हाइंड विंग। फ्लाइंग में हेल्प करता है हाइंड विंग। और इलाट्रा या टेगमिना किसको कहते हैं? फॉर विंग को। फॉर विंग को बोलते हैं इलाट्रा या टेगमिना। क्वेश्चन आया ये, है ना, ध्यान रखिए। चलो, तो ये सारी बात अपने को बतानी कॉकरोच की। होप्स हो कि क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है कि किसी को? ठीक है, ये अपना एक टॉपिक खत्म हुआ, कॉकरोच। ठीक है, अब सुनो भाई, ने नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर, अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। हिपेटिक सीका कहाँ लगी हुई है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर। कितना नंबर है हिपेटिक सीका का? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पाथ वे बताना फूड के लिए मूवमेंट करने के लिए। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, फिर मिडगट, फिर इलियम, कोलोन, रेक्टम। अच्छा, प्रोवेंटिकुलर पार्ट किसको कहते हैं? गिजार्ड को। गिजार्ड को बोलते हैं प्रोवेंटिकुलर पार्ट। अच्छा, मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस इन क्रॉप, और फूड को स्टोर भी करता है क्रॉप, और डाइजेशन भी करता है। अच्छा, फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा? मिड गट के एंटीरियर साइड में, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? मिड गट के पोस्टीरियर साइड। कर लोगे ना? ठीक है, इतना अपने को बताना है। अच्छा, एस्किशन के लिए कौन सी यूनिट है? मेल्फिजन रिएक्शन बोलो। पोटेशियम यूरेट प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O प्लस यूरिक एसिड। कई बार ये पूछते हैं कि यूरिक एसिड एसकेटी प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड नहीं तो पोटेशियम यूरेट भी दे सकते हैं। आया है क्वेश्चन ये। पेज नंबर 187 पे देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन। पेज नंबर 187 पे 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। पेज नंबर 187 पे 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? एसकेटी प्रोडक्ट क्या है इसका? पोटेशियम यूरेट, है ना। अच्छा, यूरिक एसिड देता तो फिर यूरिक एसिड करते हैं अपन। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। चलो, और इसके विजन कैसा होता है? मोजेक विजन होता है। ठीक है, अच्छा, एनल सरकाई किसमें? मेल फीमेल दोनों में। कहां पे है? 10th के टर्गम पे। एनल स्टाइल केवल 9th के स्टर्नम पे। 5 और 6 सेगमेंट में स्टिंग ग्लैंड टर्गम पे होती है। याद रहेगा ना सारा?
अच्छा कितनी प्लेट्स होती हैं? 4, टर्गम, स्टर्नम, प्लूरा। और इन 7 को जोड़ने का काम कौन करता है? आर्थोडल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, पेज नंबर 187 में 3rd नंबर का क्वेश्चन या ऐसे कुछ आया हुआ है, देखिएगा वहाँ। नहीं तो चलो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। तो मॉड्यूल डिस्कशन भी अपन ने 1-2 बार कर रखा है इसका, अभी एक बार किया था ना पहले। हाँ तो वो ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब एक टॉपिक नया जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्केलेटल सिस्टम। एक्चुअल में क्या है ना, क्योंकि मसल्स उधर चल रहा है, तो मसल्स और स्केलेटन दोनों एक ही टॉपिक जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो अभी अपन स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो जरूरत ही नहीं है लाने की, और तो वो भी लाएंगे। अभी अपन तेरा 206 बॉन्ड है ना, वो सारी याद होनी चाहिए। 206 बॉन्ड टिप्स पे अभी हो जाएगी, मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं है, अभी याद करते हैं अपन। हाँ चलो भाई। हाँ भाई। नहीं नहीं, एक दिन लास्ट में बताएंगे वो भी। नहीं नहीं, लास्ट में उससे भी बताएंगे। हो गया। चलो भाई, ऐसे नहीं करना है किसी को, कागज फेंक के मारना या ऐसे नहीं करना, बड़े हो गए हो अब, है। सुनो, सुनो भी बात को। बॉन्स 206 बॉन्स हैं, इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटल है जो है 126, और एक्सियल बॉन्स है 80। अब देखो 126 को पहले तो याद करना है, कैसे याद करना है सुनो। ओके, देखो फोर लिम्ब के अंदर सुनो, ये फोर लिम्ब में ये क्या है? ह्यूमरस। ठीक है, 1 रेडियस,
1 अल्ना 1 कार्पल्स 8 मेटाकार्पल्स 5 और फैलेंजेस 14। देखो 2 3 3 3 3 ये होते हैं ह्यूमरस। देखो ये यहाँ पे हम बात करें ये कितनी होती हैं तो हम कहेंगे ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना 1 कार्पल्स 8 मेटाकार्पल्स 5 और फैलेंजेस 14। इन सबको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 30। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस हैंड में कितना हुआ 30 बॉन्ड्स, तो इधर भी कितना हुआ तो 30 इंटू 2, तो ये 60 बॉन्ड, तो ये याद हो गई अपने 60 बॉन्ड लर्न हो गई। ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना 1 ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना 1 कार्पल्स यहाँ पे मेटाकार्पल्स 5 फैलेंजेस 14। तो इधर 30 है तो इधर भी 30 तो 60। अब इधर देखो फीमर 1 चिबिया पटेला 1 फीमर 1 पटेला 1 चिबिया 1 फिबुला 1। अब टार्सल्स 7 मेटाटार्सल्स 5 और फैलेंजेस 14। तो यहां पर देखो इसमें हम बात करें ये भी कितनी है भाई 60। फीमर 1 पटेला 1 फिर चिबिया 1 फिबुला 1 टार्सल 7 मेटाटार्सल्स 5 और फैलेंजेस 14। टोटल कितनी हो गई 30। 30 इंटू 2 टोटल हो गई 60। ये 60 और 60 120। तो 120 बॉन्ड अपने को लर्न हो गई। अब गर्डल देखो पेक्टोरल गर्डल, ये क्लेविकल बोन है, कलर बोन, ब्यूटी बोन, विश बोन, मेरीथोट बोन। तो क्लेविकल, एक तो क्लेविकल और एक स्केपुला। इधर क्लेविकल और स्केपुला दो, इधर क्लेविकल और स्केपुला, कितनी हो गई तो ये हो गई 4। क्लेविकल 1 स्केपुला 1, ये 2 इंटू 4। अच्छा पेल्विक गर्डल 2, पेल्विक गर्डल में क्या होता है 2। यू नो pelvic girdle consists of two equal half. Pelvic girdle consists of two equal half, and each equal half is known as the coxal bone. And each coxal bone have ilium, ischium, pubis. और इधर भी होता है ilium, ischium। दोनों pubis पार्ट जहां मिलेंगे वो pubic symphysis। You know, फीमेल के अंदर at the time of the child birth, pubic symphysis become dilate with the help of the relaxin hormone. Relaxin comes from the ovary and also comes from the placenta. एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ रिलैक्सिन आल्सो रिलीज फ्रॉम ओवरी। आल्सो रिलीज फ्रॉम ओवरी का मतलब ओवरी से तो रिलीज हो ही रहा है, प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। तो ये पेल्विक गर्डल इसमें दो। तो आप देखो 30 इस हाथ में 30 इधर 60, 30 इधर 30 इधर 60। क्लेविकल इसके बोला दो इधर हो और पेल्विक गर्डल टोटल होगी 126। ये लर्न होगी 126। अब कितनी बची 80 और इजी है, ठीक है। अब सुनो 80 में सबसे पहले स्कल, स्कल के अंदर क्रेनियम, क्रेनियम और इधर फेशियल। क्रेनियम के अंदर 8 और फेशियल के अंदर 14। अच्छा क्रेनियम में सुनो भाई फ्रंटल 1
पैराइटल टू टेम्पोरल टू ऑक्सीपिटल 1 एथिमॉइड 1 और स्फिनॉइड 1। टोटल कितनी हो गई भाई? 8 हो गई। ये 8 फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथेमॉइड और स्फिनॉइड, ये टोटल 1 होगी। पैराइटल और टेम्पोरल दो दो है, बाकी सब एक। ये फ्रंटल, ये फ्रंटल। फ्रंटल कितना होता है? 1। पैराइटल, टेम्पोरल बीच में रहेगा, ऑक्सीपिटल, इथेमॉइड और स्फिनॉइड ये यहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना? तो हाँ, अभी अभी लोकेशन बताएंगे, अभी डायग्राम बना रहे हैं, बस 1 मिनट, अभी इसके बाद डायग्राम बनाते हैं, अभी पता लग जाएगा। सुनो, अच्छा फेशियल, फेस में कितनी बोन्स है? नहीं कितनी लिखी है यहाँ पे? मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, नेजल 2, जाइगोमेटिक 2। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बात करेंगे लैक्रिमल 2। ठीक है। मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, नेजल 2, जाइगोमेटिक 2, लैक्रिमल 2। ठीक है। मैंडिबल 1, वॉर्मर 1। ठीक है। और एक और रह गई है इसके अंदर, देखो, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, मैंडिबल 1, वॉर्मर 1 और इंफीरियर टर्बाइनल। एक और जो रहा है वो इंफीरियर टर्बाइनल, ये होता है 2। टोटल हो गई ये, हम बात करें यहाँ पे 14। ठीक है। ओके, अब बात करनी स्टर्नम कितना भाई? स्टर्नम 1, ये स्टर्नम 1। अच्छा, रिब्स 24। तो ट्रू रिब्स तो कितनी हो गई? ट्रू रिब्स तो हो गई है 14। अरे 1 to 7 ट्रू रिब्स, 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 9 10 फॉल्स रिब्स, 11 12 फ्लोटिंग रिब्स। तो 1 to 7 ट्रू रिब्स, तो 7 इधर 7 इधर, तो 14। ठीक है। अच्छा, फॉल्स रिब्स कितनी हो जाएंगी? देखो, 8 9 10 तो फॉल्स है ही, 11 12 जो फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग को भी फॉल्स में कंसिडर करना है। तो अभी कितनी हो गई? 5 इधर और 5 इधर, 10। तो ये 10 हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 24। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सुनो, सर्वाइकल, थोरेसिक, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। कॉडल को कॉक्सियल भी कहते हैं। अच्छा, ये देखना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल, टोटल नंबर बताना। 33। और ये होती कितनी है? 26। क्योंकि लास्ट वाली ये जो है ना ब्रैकेट लगा रखा है, ये फ्यूज हो गई है, ये फ्यूज हो गई है। देखो, तो 7 और 12 कितना हुआ? 19 और 5, और ये 1 1 26। क्योंकि ये ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब फ्यूज हो गई है, 1 1 हो गया ये। ठीक। अच्छा, इसको काउंट करना भाई, ये कितने हो गए? क्या 80? 80 हो ही नहीं सकती, अभी कम है 7, 7 कम है। एक होता है हायोइड बॉन्ड,
एक होता है हायोइड बॉन्ड। हायोइड बॉन्ड का नंबर होता है 1, जो किसी भी बॉन्ड से कनेक्ट नहीं होती। हायोइड। एक ईयर ऑसिकल, 3 into 2 कितना हुआ? 6। सुनो, मेलियस इनकस स्टेप्स, इधर भी होता है मेलियस इनकस और स्टेप, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 6। अब ये काउंट करने का है, 80 हो जाएगा। तो ये पूरा अपने को ध्यान रखना है। अब सुनो कि सर ये स्टर्नम तो समझ में आ गया, ये रहा स्टर्नम। सब वर्टिब्रल कॉलम में समझ, सर्वाइकल, ये सब नेक, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। टू रिप्स ही समझ में आ गया सर के 1 to 7 टू रिप्स है, 8 9 10 फॉल्स और 11 12 फ्लोटिंग। तो टू रिप्स 7 इधर 14 और फॉल्स रिप्स। अच्छा, फ्लोटिंग को भी किसमें मानने का है? फॉल्स। तो 7 8 9 10 11 12, 5 इधर 5 इधर, तो 10 हो गई। हाइट वन समझ में आ गया सर, ईरोसी का। ये सर फेशियल वाले थोड़ी बता देते। देखो मैक्सिला, सुनो भाई, ये मैक्सिला है अपर जो, ये मैक्सिला कितना है? 2। पैलेटाइन 2। नेजल, ये नेजल, यहां तक नेजल। जाइगोमेटिक, जब आप यूं करते ना तो ये निकलता नहीं, ये जाइगोमेटिक होता है मत कर। तो ये जाइगोमेटिक। लेक्रिमल यहाँ होती है, लेक्रिमल, ये लेक्रिमल। टीयर ग्लैंड होती है, लेक्रिमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। छोटा बच्चा जब रोता है ना, 4 महीने तक तो उसके टीयर ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होती है, तो छोटा बच्चा जब रोता है तो उसके आंसू नहीं आते 4 महीने तक, तो वो केवल चिल्लाता है। आंसू, टीयर ग्लैंड तो डेवलप होती है 4 महीने बाद, है ना, और उसके बाद फिर उसके टीयर्स आते हैं। तो ये यहाँ पे होती है लैक्रिमल ग्लैंड, ये लैक्रिमल। इंफीरियर टर्बाइनल, ये यहाँ पे अंदर होती है, नोज के यहाँ पे इंफीरियर टर्बाइनल्स होती है, ठीक है। मैंडिबल, लोअर जो 1, वोमर 1। तो बार बार कह रहा है कि दिखाओ, तो अभी रुक जाओ। ये तो अच्छा रिप्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे। तो इधर देखो, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो है ना, इधर देखो यहाँ पे, तो आप अपने अंदर एज्यूम कर सकते हो बेटा कौन सी बॉन्ड कहां पर है। सुनो, मैक्सिला, ये अपर जो आप देख रहे हैं, ये मैक्सिला, पैलेटाइन, रूफ, नेजल, नेजल यहाँ हाथ लगो, नेजल ये दिखेगी, नेजल ये यहाँ पे हाथ लग, ये यहाँ नेजल दिखेगी आपको। जाइगोमेटिक, ये होता है ना जाइगोमेटिक, जब आप, हाँ जाइगोमेटिक। लेक्रिमल, ये अंदर लेक्रिमल, यहाँ ये लेक्रिमल। इंफीरियर टर्बाइनल, ये इंफीरियर टर्बाइनल। मैंडिबल लोअर जा, और वॉमर ये बीच में, वॉमर ये अपर लिप होता है ना, अपर लिप, अपर लिप के बीच में यहाँ, ये वॉमर अपर लिप है, उसके बीच में अपनी, आप अपने भी देख सकते हो या पड़ोस वाले देखो, वॉमर अपर लिप के बीच में यहाँ, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब ये जितने भी बॉन्ड्स है, ये सारी अभी अपने को लर्न होनी चाहिए भाई। अभी एक बार देख लो जल्दी से, 126 और 80। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट भाई किसी को, कोई दिख रहा है कि नहीं? वर्टिकल के साइड में नहीं दिख रहा है, और वर्टिकल कॉलम के साइड में, वर्टिकल कॉलम कहाँ है? अच्छा, तो चलो, अभी अभी दिखेगा भैया, अभी अभी दिखेगा इसको, है ना आपको? बॉन्ड्स का नंबर तो दिख रहा ना, बॉन्ड का नंबर नहीं दिख रहा, बस इतना ही है ना। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, ये तो दिख रहा है, बॉन्ड्स का नंबर नहीं दिख रहा है। नंबर नहीं दिख रहा ना, ओके। नंबर यहां लिख देता हूं मैं, नंबर इधर लिख देते हैं भाई, कोई बात नहीं। ट्रू रिप्स 14 और ये 10। अच्छा, इसमें यहां लिख देते हैं सर्वाइकल 7 12 5 5 और 4।
अच्छा ये जो लास्ट वाली है ना, ये फ्यूज हो गई है, अभी दिख रहा है भाई, ये लास्ट वाली फ्यूज हो गई है। ठीक है, अब एक बार जल्दी से इसको लर्न कर लो। अभी पूरा बॉन्ड्स पूछेंगे, 206 बॉन्ड। ए, क्यों कर रहा है? सुनो, जल्दी एक बार रिवाइज करो इसको, अभी नंबर पूछूंगा सबसे। अब पहले नंबर पूछेंगे फिर आगे चलेंगे। जल्दी एक बार रिवाइज करो। चलो, अब जल्दी से बताना भाई, मिटा दो इसको। सुनो, फोर लिम्ब, ह्यूमरस, वन, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। तो फेलेंजेस 14 है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है फेलेंजेस का, पता? फेलेंजेस का फॉर्मूला ये है, 2 3 3 3 3। टू तो किसमें हो गए? थंब में। बाकी सब में कितने? 3। ये देखो, टू थंब में 2 ही है, और बाकी इनमें कितने? 1 2 3। तो 2 3 3 3 3 ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा हैंड लिम्ब पे आओ। हैंड लिम्ब, फीमर 1, पटेला 1, चिबिया, फिबुला, कार्पल्स 7 7। कार्पल्स कितने? टार्सल्स, सॉरी टार्सल्स कितने? 7। मेटाटार्सल्स 5। फेलेंजेस 14। 30, 30 इधर, 30 इधर, 60, 60 60 120। अच्छा पेक्टोरल गर्डल, सुनो इसमें क्लेविकल और स्केपुला, इधर भी क्लेविकल और, तो दो इधर दो इधर, 4। अच्छा पेल्विक गर्डल कंसीडर 2 इक्वल हाफ एंड ईच इक्वल हाफ इज नोन एज द कॉक्सियल बॉन्ड। अब इधर आओ, स्कल, क्रेनियम, फ्रंटल 1, पैरेटल 2, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथेमॉइड और स्पिनोइड 1। टोटल हो गई 8। ये क्रेनियम है, ये क्रेनियम, इसके अंदर 8 बोन्स है। ठीक है ना, क्रेनियम। फेशियल, फेशियल के अंदर जब बात करें, मैक्सिला, अपर ये मैक्सिला, पैलेटाइन 2, नेजल, ये नेजल, जाइगोमेटिक 2, लैक्रिमल 2, इंफीरियर टर्बाइनल, मैंडिबल, वॉमर 1। टोटल 14। स्टर्नम कितना भाई? 1। रिप्स 24, 1 to 7 टू रिप्स, तो 1 to 7 इधर, 1 to 7 इधर, 14 14 टू रिप्स। फॉल्स रिप 10। देखो 8 9 10 और 11 12 इन सबको फॉल्स माना, 5 इधर 5 इधर। अच्छा वर्टिबल कॉलम बताओ, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल या कॉर्डल, 7 12 5 5 4। ये लास्ट वाली दो फ्यूज होके क्या बनाती? 1। ये भी बनाते कि 1। तो इन सबको काउंट करेंगे, इनको 1 1 मानना है, तो ये कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, अच्छा हाइब्रिड बॉन्ड 1 और ईयर ऑसिकल 6। ईयर ऑसिकल हो जाएंगे 6, याद रहेगा? ठीक है, ये 206 बॉन्ड याद हो गई। अब अपने को जो देखना है वो देखना। अब सुनो, ये जो थोरेसिक केस है ना, थोरेसिक केस किससे मिलके बना है? सुनो, डोर्सल साइड में क्या है? वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, एंटीरियर क्लेविकल, पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम और इधर रिब्स। तो थोरेसिक केस बना होता है, देखो डोर्सल वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर डायफ्राम। ये थोरेसिक केज हो गया। अब थोड़ी सी केज की जब बात करते हैं ना, तो इसके अलावा एक बात और करते हैं। ये जो स्टर्नम है ना अपना, ये स्टर्नम जो होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टर्नम, मेजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। हमारे बॉडी के अंदर हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, जहां ब्लड बनता है,
एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टर्नम में भी ब्लड बनता है। यदि किसी को ब्लड डिजीज है तो कहां से ब्लड लिया जाता है पता है? ये स्टर्नम वाले पार्ट से। इसके स्टर्नम वाले पार्ट ये जिफोइड प्रोसेस बोलते हैं, या नीचे वाले पार्ट को जिफोइड। प्रो स्टर्नम, मिजो स्टर्नम और मेटा स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट है, प्रो, मिजो और मेटा। अच्छा, 7 रिब्स जो है ना, वो वर्टिबल कॉलम से भी जुड़ रही है और स्टर्नम से जुड़ रही है। तो 1 to 7 को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होता है, वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम दोनों से जुड़ रही है, तो वर्टिब्रो स्टर्नल। 8 9 10, 8 9 10 जुड़ती है पहले किससे? 7 से, और 7 फिर किससे जुड़ती है? स्टर्नम से, तो उनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। और 11 12 को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है। हमारी जो वर्टिबल कॉलम है ना, उसमें कर्वेचर होते हैं 4 4। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा घुटने चलता है, आपने देख घुटनों के बल चलता है, वो खड़ा होकर क्यों नहीं चल पाता है छोटा सा बच्चा? अच्छा उसने सुनो, छोटे बच्चे को आप खड़ा करो, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो कर्वेचर होता है ना, ये बर्थ के बाद डेवलप होता है। बर्थ से पहले 2 कर्वेचर डेवलप होते हैं, थोरेसिक और लंबर। छोटा बच्चा देखना, वो इस प्रकार से मदर के यूट्रस में इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा इस प्रकार से, क्योंकि उसमें 2 ही कर्वेचर है, अभी अभी 2 ही कर्वेचर है बर्थ से पहले। बर्थ के बाद छोटा बच्चा जो है ना, अभी घुटने घुटने चलेगा, क्योंकि ये कर्वेचर एक्टिव हुआ ही नहीं, अभी डेवलप नहीं हुआ। ये कर्वेचर कब डेवलप होगा? बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। तो जब ये कर्वेचर डेवलप हो जाएगा ना, तब वो बच्चा खड़ा होके चल सकता है। आप देखा छोटे बच्चे को खड़ा करो तो भी नहीं, खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठ नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये कर्वेचर डेवलप ही नहीं हुआ। ये कर्वेचर बर्थ के बाद डेवलप होता है। तो बर्थ से पहले 2 कर्वेचर डेवलप होते हैं। ये देखना, ये इसको मिटा तुम्हें, ये तो हो गया ना। देखो, ये जो कर्वेचर है ना, ये सेक्रल वाला, इसको पेल्विक कर्वेचर बोलते हैं। इसको पेल्विक कर्वेचर बोलते हैं। ये बर्थ के बाद डेवलप होता है। ये दोनों बर्थ के बाद डेवलप हो रहे हैं, जबकि बर्थ से पहले ये डेवलप होते हैं। बर्थ से पहले ये डेवलप हो रहे हैं। छोटा बच्चा देखना, अभी इस प्रकार से कर्व रहता है, यूट्रस में इस प्रकार से रहता है। यूट्रस में इस प्रकार से रहेगा ना, तो ये 2 कर्वेचर बर्थ से पहले डेवलप हो चुके हैं। ये वाले जो कर्वेचर है ना, थोड़े सी को लंबर, ये बर्थ से पहले डेवलप हो गए। बच्चे का बर्थ हो जाता ना, तो उसके बाद भी वो नियर अबाउट 1 मंथ तक तो वो इस प्रकार से सोता है, वो ऐसे ही सोता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो बर्थ से पहले डेवलप हो गए, बर्थ के बाद ये डेवलप होते हैं। जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा ना, तो बच्चा खड़ा होकर चल सकता है इजीली। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं पेल्विक कर्वेचर। ये आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं, ये बर्थ से पहले डेवलप होगा। ठीक। एक बात और, यहाँ जब बात कर रहे हैं, अच्छा, ये थोड़ी सी केस तो बता दोगे ना, कौन कौन से पार्ट है कहाँ पे? ठीक है, एक बात जो बतानी है अभी हमको, जैसे बच्चे कहते हैं साहब ये इनकी पोजीशन एक बार देखने का है, इनकी पोजीशन बताते हैं आप। अच्छा, इनके बीच में सूचर्स होते हैं, सूचर, इमूवेबल जॉइंट्स होता है। ये देखो, ये है ना, ये क्रेनियम, फ्रंटल और पैरेटल के बीच में एक सूचर होता है। सूचर मतलब एक कनेक्शन होता है, लिंक। वो फ्रंटल और पैरेटल के बीच में सूचर होता है, उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर। और
फ्रंटल, ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में सूचर होता ना, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे लंबोइडल सूचर। और दो पैराइटल के बीच में सेजिटल सूचर होता है, ये इमूवेबल जॉइंट होता है। बाकी सारे जॉइंट्स मूवेबल है, ये कौन सा जॉइंट है, इमूवेबल, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं इसको। अभी हम बात करेंगे आगे। जैसे आप कई बार बात करते हैं ना, कई बार जैसे आप करते हो दूर से बोले, ये इलिप्सोइडल जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, इलिप्सोइडल। कई बार आप करते हो ना ऐसे कि भाई दूर से किसी को ऐसे करते हो ना, ये इलिप्सोइडल जॉइंट होता है, ये इलिप्सोइडल जॉइंट। फिर वहां से क्या आता है, ये सैडल जॉइंट है, ये सैडल जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट हुआ, इलिप्सोइडल, ये सैडल जॉइंट। क्रिकेटर क्रिकेट बॉलिंग करता ना, क्रिकेटर वो ये बॉलिंग कर रहा है, कौन सा जॉइंट हुआ, अरे बॉल एंड सॉकेट। भाई ये कौन सा जॉइंट हुआ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ। क्रिकेटर बॉलिंग कर रहा ना, ये बॉल एंड सॉकेट। फुटबॉलर फुटबॉलर किक लगा रहा है, ये हिंज जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। एक डायरेक्शन में मूव कर रहा ना, हिंज जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। अच्छा सुनो, पाइवोट जॉइंट, ये जो अपन टर्न करा ना, पाइवोट जॉइंट होता है। जॉइंट, सुनो बात को, देखो कई बार होता ना, अपने को नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में भी अपने को पता होना चाहिए कौन से जॉइंट कहां पर है। ये जॉइंट है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। अभी आगे बात करेंगे अपन, सारे जॉइंट्स की बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रेनियम में सूचर्स के अंदर जो जॉइंट्स है वो कैसा जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। सूचर के अंदर जो जॉइंट होता है इमूवेबल। एक डायग्राम इसका बना लेते हैं, देखिए। अच्छा, ये कर्वेचर याद रहेगा, बर्थ से पहले कौन से, बर्थ के बाद, थोरेसिक और लंबर बर्थ से, और ये बर्थ के बाद। अब देखिएगा, सुनो भाई, ये सुनो, फ्रंट ये लोब्स होती हैं, फ्रंटल और पैराइटल लोब। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, एथेमॉइड। अब सुनो, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर दिख रहा है, इस सूचर को अपन कहते हैं, इस सूचर को अपन कहेंगे कोरोनल सूचर। क्या कहेंगे, कोरोनल सूचर। पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो सूचर दिख रहा है, इसको कहेंगे लंबोइडल सूचर। और दो पैराइटल के बीच में जो सूचर होगा उसको बोलते हैं सेजिटल सूचर। ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। कल अपन इससे भी दिखा देंगे आपको, थोड़ा सा और क्लियर करके बता देंगे भी कैसा कहां पे रहेगा। तो देखो,
सूचर्स। कल मॉड्यूल लेके आना भाई, वो उसका स्केलेटन के लिए है ना। हाँ, फ्रंटल एंड कोरोनल सूचर, ठीक है। पैराइटल और ऑक्सीपिटल लॉब के बीच में जो सूचर होगा उसको कहेंगे लैम्बडोइडल सूचर। और पैराइटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर होता है उसको कहते हैं सैजिटल सूचर। अच्छा, ये जो सूचर है ये कौन सा जॉइंट है? ये फाइब्रस जॉइंट है। और दूसरा इसको क्या कहेंगे अपन? इमूवेबल जॉइंट होता है। ये ध्यान रखना, सूचर्स जो है वो फाइब्रस जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट्स होता है। फ्रंटल और पैरेटल के बीच में कोरोनल सूचर, पैरेटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लंबोइडल सूचर, और दो पैरेटल के बीच में सजिटल सूचर होता है। ये मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये स्फिनोइड इथेमोइड रहते हैं। तो ये सारी बात आपने को यहाँ पे बतानी है। एक डायग्राम भी बना हुआ है, आप देखो उसमें एनसीईआरटी के अंदर, एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये कौन सा पेज, 309 पे देखो, 309 पे एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 309 पे। तो उसमें देखो वहां सूचर दिख रहे हैं आपको। फ्रंटल, देखो फ्रंटल और पैरेटल के बीच में देखो एक सूचर दिख रहा है क्या? है ना, वो कौन सा सूचर हो जाएगा वो? आप चाहो तो एरो करके लिख सकते हो उसको। फ्रंटल और पैरेटल के बीच में पेंसिल से लिख दो एरो को। फ्रंटल और पैरेटल के बीच में सूचर है वो कोरोनल सूचर है। पैरेटल और ऑक्सीपिटल के बीच में सूचर है वो लंबोइडल सूचर, ठीक है। और दो पैरेटल के बीच में सूचर होगा वो सैजिटल सूचर हो जाएगा। और ये सारे जॉइंट्स कैसे होंगे? इमूवेबल जॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां जब बात कर रहे हैं, ये जो सूचर्स के नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा लिखोगे, ये समझ जाओगे। फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्पेनॉइड, इथेमॉइड, क्लियर है ना। हाँ, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलो, अब एक बात और, क्या पूछ रहा है? यहाँ पे ये जो आई सॉकेट है ना, आई सॉकेट, इसके अंदर यहाँ पे इस साइड इथेमॉइड होता है। ये आई सॉकेट के अंदर यहाँ पर इथेमॉइड वाला कुछ है। क्या कह रहा है? चलो, तो ये सूचर की बात करनी है। अब सुनो, हमारे अंदर जो स्केलेटन है वो कैसा है? एंडो या एक्सो? एंडो। एंडो स्केलेटन मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। एंडो स्केलेटन किससे ओरिजिनेट होता है? मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सो स्केलेटन किससे ओरिजिन होता है? एक्टोडर्म। एक्सो स्केलेटन कौन कौन से बताओ? नहीं नहीं, सुनो, स्केल्स एक्सो स्केलेटन हुआ, हॉर्न्स, हूफ्स, शू, है ना, और नेल्स, ये सब क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन का ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से। और एंडोस्केलेटन बोन्स किसके ओरिजिन होता है? मित्रों, हमारी जितनी भी बोन्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस था। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस था। बाद में क्या हुआ? उसके ऊपर बॉडी मैटर डिपॉजिट हुआ। तो कार्टिलेज को रिमूव करना पड़ेगा। देखो, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करने वाली सेल को कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय करने का कॉन्ड्रियोक्लास्ट। बोन का फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट। बोन को रिमूव करना है ऑस्टियोक्लास्ट। हमारा स्केलेटन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज का बना हुआ है। अब कार्टिलेज को रिमूव करने का है, तो कार्टिलेज को रिमूव करेगा कॉन्ड्रियोक्लास्ट, और उस पर बॉडी मैटर डिपॉजिट करेगा ऑस्टियोब्लास्ट। बात समझ में आ रही? तो ये ध्यान, अभी हमारे अंदर कार्टिलेज के स्ट्रक्चर कौन कौन से? कार्टिलेज के स्ट्रक्चर, ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब भी ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज। अच्छा, और कार्टिलेजिनस क्या रहता है भाई? इंटरवर्टिबल डिस्क भी है क्या? इंटरवर्टिबल डिस्क भी इसके अंदर ही आएगा। तो ये कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कार्टिलेजिनस आज भी है। अच्छा, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये पेलिएबल होता है ना, कंप्रेस हो सकता है। और तो ये पेलिएबल रहता है, जबकि
तो बहुत बदमाशी कर, जबकि बोन्स जो है वो हार्ड होती है, सॉलिड हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। अब एक डायग्राम अपन को बनाना है, उसके लिए अपन बात करते हैं कि वर्टिब्रीज जो है कैसे। देखो वर्टिब्रीज थोड़ी सी, कितनी सर्वाइकल कितनी बताई, 7। चाहे ह्यूमन का नेक को, जिराफ का नेक को, माउस का नेक, सब में 7। तो सो जिराफ का तो इतना बड़ा नेक है, साइज बड़ा होगा, नंबर 7 ही होगा। तो सबसे फर्स्ट वर्टिब्री एटलस, उसके बाद में है एक्सिस, एटलस एक्सिस, इस प्रकार से अपने को करना है। तो एटलस, ये अपन जो घुमा रहे ना ये नेक, ये एटलस एक्सिस की बात करेंगे। अच्छा, हमारे अंदर स्कल कैसा है, डाइकोंडाइल, पीछे एक ओपनिंग होती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम, वहां से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर ये प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, वर्टिबल कॉलम। आप अपनी नेक को इस प्रकार से करेंगे ना, तो इस प्रकार नीचे करेंगे, कंधे को पीछे रखना नीचे, और वापस रिलैक्स करें, तो आपको लगेगा जैसे स्पाइनल कॉर्ड ये ऊपर आ रही है, ये करेंगे ना, ये फिर ये। तो जित वर्टिबल कॉलम है उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं अपन। क्या हो गया, टाइम हो गया क्या, अभी तो बाकी है ना टाइम। अच्छा, आज शॉर्ट है क्लास, आज थोड़ी है। अच्छा, बेल कहाँ हुआ अभी, बेल तो होने दो। चलो, तो अभी भाई अपन बात करेंगे, एक तो कल ये मॉड्यूल आपको लेके आना है। चलो भाई, आ, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज इतना रखेंगे बेटा, कल नेक्स्ट और करेंगे।